السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل فضائل اعمال میں عادل کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں جو آج آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے صلح حدیبیہ اور ابو جندل اور ابو بصیر کا قصہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کافرین کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدہ جو تھا وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا۔ اور اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک شروع کروں تو ویورز آپ سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جی، سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی۔ وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربانا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی۔ باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار گزرا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا؟ جان نثار تھے اور فرما بردار اس قدر، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا جائے اور وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح تکلیفوں برداشت کر رہے تھے، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پا لوں۔ ان کے باپ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس صلح نامہ کی حمایت میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو مانتا ہوں، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اب واپس نہیں جانا چاہتا۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی یہ تو اللہ ہی جانے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ ہی کو معلوم، ان قریب حق تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامے کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی ایسے ہی اس قسم کا قصہ ہے کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے، کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وعدہ واپس فرما دیا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجنا چاہتے ہیں؟
आपने उनसे सब्र करने को तलकीन की और फरमाया इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा। ये दोनों सहाबी काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज बंदा ज़रा सी बात भूल ही जाता है। वो नयाम से तलवार निकाल कर कहने लगे कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये तलवार निकाल कर उनके हवाले कर दी और उस पर उसी का तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर एक तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है। भागा हुआ मदीना आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा तो पूरा फरमा चुके हैं, मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है। जिसकी जिम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटा नहीं सकता, इसलिए मैंने ये किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुअय्यन और मददगार हो। वहाँ से चलकर समंदर के किनारे पर एक जगह वो रहने लगे। मक्का वालों को इसका हाल मालूम हुआ कि अबू जंदल भी, जिनका किस्सा पहले गुजर चुका है, छुप कर वहाँ पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनको वहाँ जाके मिलता। चंद रोज़ में एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में न जाने कोई इंतज़ाम ना था, ना कोई बगात, ना कोई खाना, ना कुछ। ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही का मालूम है कि उन्होंने किस तरह वहाँ पे गुजर बसर किया। जो काफिला इधर को जाता, मुकाबला करते और लड़ते। हत्ता कि कफ़ारे मक्का ने परेशान होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा, इस बेसिरी जमात को अपने पास बुला लें, ये मुआहदा में तो दाखिल हो जाए, ये मुआहदे में तो दाखिल हो जाए। हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुलने लगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा इन हजरात के पास पहुंचा तो अबू बसीर मर्जुल मौत में गिरफ्तार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलानामा हाथ में थमाकर उसी हालत में इंतकाल फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन। आदमी अपने दीन पर पक्का हो, बशर्त ये कि दीन में सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती। मुसलमानों का वादा और अल्लाह का वादा, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो। कि किस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वादा निभाया मुशरिकीन के साथ। और जी, जैसा कि आपने देखा सुलह हुदैबिया में मुसलमानों ने किस तरीके से तकलीफ़ें उठाई। इसी और किस्म का ऐसे ही सहाबी जो कि मशहूर सहाबी हैं, जिनके बारे में हर शख्स जानता है कि जब वो दुनिया में चलते तो जन्नत में उनकी कदमों की आवाज़ सुनती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल हबशी का इस्लाम और उनकी मसाइब आज मैं आपसे जिक्र करती हूँ कि हज़रत बिलाल हबशी जो मशहूर सहाबी है, एक दफ़ा उन्होंने अज़ान नहीं दी तो उस दिन सुबह ही नहीं हुई। मस्जिद नबवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बहुत प्यारे सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी में हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें उठाई। उमैया बिन खलफ के मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सैयद हज़रत बिलाल हबशी को उनके गरम रेत पर लिटाया, सीने पर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टान रख देता ताकि वो हरकत ना कर सके। इस हाल में कि वो मर जाए, जिंदगी चाहे तो इस्लाम से हट जाए, मगर वो इस हालत में अहद अहद कहते और एक ही लफ्ज़ कहते कि माबूद एक ही है, माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े मारे जाते। अगले दिन जख्मों के साथ ही गर्म ज़मीन पर लिटा दिया जाता, ज़्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए, तड़प तड़प के खुद ही इस्लाम से फिर जाए। अज़ाब देने वाले उतार जाते। अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का। हर शख्स कोशिश करता तकलीफ देने में, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी
आहद करते रहते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हाल में देखा तो उनको ख़रीदा और उनको आज़ाद कर दिया। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को मबूद कहते थे, इसलिए मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल हबशी उनके साथ मुकाबला करते और इस्लाम का दावा, इस्लाम की तबलीग देते। हम झूठे मोहब्बतों में फंसे हुए हैं। आज सिर्फ इस्लाम का नाम ही है। हज़रत बिलाल हबशी को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई गई, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई गई। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता, फिर उनको पत्थर मारे जाते, उनके सीनों पर गर्म पत्थर रखे जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है कि आप हमारे पास नहीं आते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत बिलाल हबशी ने सोचा कि आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। वो उनके गम में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि वो अजान देना ही भूल गए। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है कि हमारे पास कभी आते ही नहीं। इस पर आँख खुली। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु उनके हज़रत बिलाल हबशी ने अजान देना शुरू की, अजान कहना शुरू की और मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में कानों में पढ़कर, कानों में अजान का सुनकर पुरहम मच गया। औरतें रोने लगी, औरतें घरों से निकल गई। चंद रोज़ क़याम के बाद सन 20 हिजरी में दमिश्क में हज़रत बिलाल हबशी का विसाल हुआ। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ इसमें कमी कुताही हुई है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और इसका सवाब हज़रत आदम से लेकर जितने इस दुनिया से अहले ईमान रुखसत हो गए हैं उन सब तक पहुँचाए और हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सब क्या करो ये करो। अल्लाह हाफिज़।